So, hello, my dear student. Welcome to the chemistry classes. Now we are going to discuss the some important chapter and basic concepts some basic concepts in chemistry. Okay, so let's discuss this chapter. So first one that is we are going to discuss first one that is law of conservation of mass. Okay, so we'll write here law of mass conservation. Okay, so law of mass conservation. So my dears, so you know the meaning of conservation means it is conserve. Okay, so ये क्या होगा आपका कंजर्व होगा. अब ये कंजर्व जब रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी चीज कंजर्व होता है मीन्स उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है. ठीक है, जितना बनता है उतना ही क्या होता है उसमें खर्च होती है. तो यहाँ पे देखो आप, इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. It means that mass can, okay, so we can write here according to this law, according to this law, okay, according to this law, mass can neither be created, mass can neither be created, okay, neither be created nor be destroyed. So mass can neither be created nor be destroyed. Okay, so mass can neither be created nor be destroyed in a chemical, or so we can write here in a destroyed in a chemical reaction. Okay, so in a chemical, okay, or physical reaction, both reaction. So there is two types of reaction, one is chemical or second one is physical reaction. Okay, so both chemical or physical reaction. Okay, but can be converted, so but can be converted one form to another, okay. So this one is the law of mass conservation. See, so ये क्या कह रहा है, according to this law mass can neither be created. Okay, so mass that is neither be created nor be destroyed in a chemical or physical reaction, okay, but can be converted into one form to another form. Okay, so let's see this by a example. Okay, see, we have taken a one example, that is when carbon, okay, so carbon when react with the oxygen and it will form the CO2, and so we write the at the reaction that will before we can call it a reactant. This one is reactant, okay, and after that reaction we will call it product. Okay, so this one is product. So reaction से पहले जो भी होता है उसे हम लोग reactant कहते हैं, उसके बाद जो होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, तो मास कंजर्वेशन में क्या होता है आपका, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, ओके, सो मास ऑफ रिएक्टेंट वो किसके बराबर होनी चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट की बराबर, तब मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड होगा. मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सब जाके मेरा क्या होगा, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन वैलिड होगी. लेट्स सी, देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की मास कितनी होगी, आप जानते हो कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होती है और मास नंबर 12. सो वी राइट द कार्बन हैज 12 ग्राम. ओके, सो ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है एंड मास कितनी होती है, 16 होती है. सो 16 into 2 that is 32 ग्राम. ओके, सो रिएक्टेंट मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट that is 12 plus 32. Okay, so in similar way here mass of product, so CO2, carbon has a 12, so we write has 12, oxygen has a 16, so 16 into 2 that is 32, so 12 plus 32, here is also 12 plus 32, here is also 12 plus 32, that is 44 and 44. Okay, so both side mass one, this one is same, this both is same. Okay, it means that mass of reactant that form is equal to mass of product. Okay, so that is equal, so it means its law of mass is valid for the law of mass conservation according to our first law.
Okay, so anything that is conserved mass can neither be created nor be destroyed. This one is our first law. Okay, so anyone who asks the sir who gives the law of conservation of mass, so it is given by Lavoisier scientist. Okay, so scientist name, so Lavoisier, so be right here, it is given by a Lavoisier scientist, Lavoisier. Okay, so it is given by a Lavoisier scientist. Okay, so this is all about the law of mass conservation. Okay, so next topic we are going to discuss, that one is the law of multiple proportion. Okay, see what is law of multiple proportion. ठीक है, देखो law of multiple proportion, so we write here second one, that is law of multiple proportion, multiple proportion. अब मुझे आप लोग बताओ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये क्या कहता है? अगर आप जानते हो कोई भी तो एक्सप्लेन करो मुझे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो होता है वो एक्चुअली किसने दिया था? ये डाल्टन ने दिया था। ओके, सो इट इज गिवन बाय, सो फर्स्ट वी राइट हियर इट इज गिवन बाय द डाल्टन। ओके, सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दैट इज, अब देखो यहाँ पे ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट समझेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में स्टेटमेंट क्या कहा है? इसका स्टेटमेंट ये है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सो बी राइट हियर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स, समझने की कोशिश करना, स्टेटमेंट फिर से बोला, इफ टू एलिमेंट्स, ओके, इफ टू एलिमेंट्स combine, should if two elements combine, okay, and to form, combine to form, if two elements combine to form more than one compound, more than one compound, okay, so more than one compound, should two elements that form, टू एलिमेंट्स व्हेन कंबाइन, जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करेगा तो उससे जो बनेगा आपका एक से ज्यादा कंपाउंड बनेगा। सी मोर देन वन कंपाउंड, ओके, सो एक से ज्यादा कंपाउंड बनेगा। देन मास ऑफ वन एलिमेंट, mass of one element is fixed, and mass of other element, carry simple ratio. So mass of other element will carry a simple ratio। ठीक है, चलो देखो समझ में आया है तो ठीक, नहीं तो हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे। देखो क्या कर रहा है, if two element combine, if you can take any two elements, suppose we take at hydrogen and oxygen, so hydrogen एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस दो एलिमेंट को कंबाइन किया। तो जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे तो इससे जो भी दो एलिमेंट आप लोगे, शायद आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, तो उससे दो कंपाउंड बननी चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे तो देखेंगे यहाँ पे दो कंपाउंड कौन कौन बनेगा, उसमें से जो मास होगा एक एलिमेंट का वो फिक्स होगा, और जो मास आपका दूसरे एलिमेंट का होगा एक सिंपल रेशियो कैरी करेगा। क्या कैरी करेगा? एक सिंपल रेशियो। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। अब हम लोग इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या है, मैंने एक दो एलिमेंट लेना है मुझे, तो एक मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। ओके, सो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, और दूसरा मैंने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको पता है, आप लोग जानते हो, जब भी हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो इससे एक कंपाउंड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर। सो यहाँ पे हम लिखते हैं या वाटर, दैट इज H2O। अब नेक्स्ट हमारे टास्क क्या है, आपको इसको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 रुपया है आपके पास तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी क्या हो गया आपका एक हो गया।
सो आवर इक्वेशन, अब हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस, ठीक है। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, फिर क्या करता है, अब तो एक ही एक कंपाउंड बना, एक कंपाउंड H2 है, यहाँ पे मेरा क्या कह रहा है, मोर देन वन कंपाउंड, ओके। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इट विल फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, H2 गैस, ओके, प्लस O2, it will form one compound that is H2O2। क्या है ये, बोलो आप लोग, क्या है ये, H2O2, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ओके। सो ये क्या आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। अब देखो, अब ये जो कहना चाह रहा था वो क्या एक्चुअली कह रहा है, तो यहाँ पे एक तो हो गया, मैंने दो एलिमेंट को कंबाइन किया, इससे क्या हो गया, दो कंपाउंड फॉर्म किया, एक कंपाउंड आपका क्या हो गया, H2O, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। सेकेंड कंपाउंड क्या आपका, H2O2, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, इसमें एक एलिमेंट का मास क्या है आपका, फिक्स है। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पे मास लिखते हैं, हाइड्रोजन को पता है आपको मास कितना था, 1, बट 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1 दैट इज 2 ग्राम, ओके। यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन मतलब एक ही ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम, शायद आपको पता होगा, नहीं तो समझ लो। अब सिमिलर वे इस केस में देखते हैं, इस केस में हाइड्रोजन की मास कितनी है, एक हाइड्रोजन है, बट एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, बट 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1 दैट इज 2 ग्राम, ओके। अब सी यहाँ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम, और तो दो ऑक्सीजन कितना होगा आपका, 32 ग्राम, कितना होगा दो ऑक्सीजन का यहाँ पे आपका, 32 ग्राम, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ऑब्जर्व करो, एक एलिमेंट का मास फिक्स है, देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना है आपका, 2 ग्राम, यहाँ भी कितना है, 2 ग्राम। तो इस हाइड्रोजन का मास क्या आपका फिक्स्ड है, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये 16 ग्राम है, ये कितना आपका 32 ग्राम है, इसका मास फिक्स नहीं है, क्या है, ये एक सिंपल रेशियो में है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका मास फिक्स नहीं है, एक सिंपल रेशियो, तो रेशियो क्या है आपका, 16:32 बाई मास, क्योंकि मास लिया ना हमने, तो बाई मास, तो 16:32 क्या है माय डियर स्टूडेंट, बाई मास, इट मीन्स 1:2 बाई मास। तो 1:2 रेशियो क्या है इसका, बाई मास आ गया, क्या इसका एक सिंपल रेशियो जो कैरी करता है। तो ये क्या आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या करता है, वैलिड करता है, नहीं करता, बिल्कुल करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, दो एलिमेंट लिया, कंबाइन किया, दो कंपाउंड बना, अब दो कंपाउंड बनने के बाद नेक्स्ट टास्क आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू चेक द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स एंड मास ऑफ अदर एलिमेंट इज वेरी। अगर ये कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट मेरा सही है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट हमने सीखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड हमने क्या सीखा, लॉ ऑफ मल्टीपल, क्या सीखा सेकेंड हमने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ओके। सो थर्ड हम लोग अब सीखने जाएंगे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ओके। सी थर्ड स्टेटमेंट दैट इज लॉ ऑफ, थर्ड क्या आपका, थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ओके। सो यहाँ पे मैं थर्ड लिखता हूँ आपका, थर्ड वन क्या है आपका, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश करना, क्या कहता है लॉ ऑफ डेफिनिट, डेफिनिट मतलब आपको समझ में आ रहा, शायद सम फिक्स होने चाहिए ना, डेफिनिट मतलब फिक्स अमाउंट होती है, ठीक है। सो अब यहाँ से समझो इस चीज को अच्छे से, अब ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये क्या कहना चाह रहा है माय डियर स्टूडेंट। सो ये सबसे पहले आपके क्वेश्चन होगी सर ये किसने दिया था, सो ये जो है ये फ्रॉस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था, ठीक है। सो इट वाज गिवन बाय द फ्रॉस्ट साइंटिस्ट, ओके। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, जब भी कोई स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। सो ये स्टेटमेंट देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेशियो कंपोनेंट, समझना क्या कह रहा है, रेशियो कंपोनेंट, रेशियो कंपोनेंट, रेशियो कंपोनेंट बाय वेट, remains same. Okay, so ratio component by weight remains same, no matter what is the source of, what is the source or method of preparation, what is the source or method of preparation. ओके, सो देखो ये क्या कह रहा है, ये एक्चुअली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एक फर्स्ट साइंटिस्ट ने दिया था। इसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या है, रेशियो कंपोनेंट पे वेट रिमेंस सेम, मतलब रेशियो कंपोनेंट जो इसका वेट का होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। नो मैटर, कोई मतलब नहीं है मुझे इससे कि क्या मेरा सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कैसे बना ये मतलब नहीं है, बट जो बनेगा उसकी रेशियो बाई कंपोनेंट वेट क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग एक एग्जांपल लेता हूं, उससे देखता हूं। जैसे आप देखो, आप डे टू डे लाइफ में भी एग्जांपल इसे देख सकते हो। जैसे सपोज करो आप जानते हो कि जैसे चावल है, राइस, ओके, सो राइस से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं ना, तो फाइनली राइस से ही बनती है ना, राइस से हमने पुलाव बना दिया, कुछ कोई और खीर बना लिए, ठीक है, सब तो राइस से ही बनती है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उससे कोई मतलब उसको नहीं है। सो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल में देखेंगे हमें क्या बनाना है, CO2 बनाना है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड, एनीवन, आप लोग बताओ कि CO2 मुझे बनाना है। ठीक है, तो CO2 कैसे बनेगा, ठीक है, आपको पता है CO2 बनाने के लिए एक पहला क्या है आपका, जब कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ओके, सो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इससे क्या बनता है आपका, CO2 बनता है। ठीक है, सो दिस वन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब CO2 जरूरी नहीं कि केवल कार्बन ही ऑक्सीजन से मिले, एक और मेथड है, शायद आपने 10th में पढ़ के आया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, सो बी राइट हियर एज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट के अगर आप हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसको आप हीट करोगे, सो इससे जब भी याद रखना कहीं भी कोई रिएक्शन हो, अगर कार्बोनेट को आप हीट करोगे, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, आपको CO2 गैस निकलता है। जब भी आप कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या निकलेगी आपकी, CO2 गैस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, CO2 गैस निकल गई है ना। अब कार्बोनेट है तो कैल्शियम है, इसके साथ क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखो कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस क्या बना आपका, CO2। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो मेरा दो अलग अलग प्रिपरेशन है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, दो डिफरेंट है। एक क्या किया मैंने, कार्बन को ऑक्सीजन से मिला के CO2 बनाया। सेकेंड वन क्या किया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके क्या बनाया, CO2। सो दोनों से बन क्या रहा है मेरा, CO2। मैंने अभी जस्ट बताया था, एक चावल राइस है, राइस से ही मुझे दूसरे अलग अलग चीजें बनाता हुआ है ना, तो बन क्या रहा है, एक्चुअली राइस ही है ना, तो ये CO2 ही बन रहा है। ठीक है, बट इस CO2 में ये क्या कह रहा है, रेशियो कंपोनेंट बाय वेट रिमेन्स सेम। जो आपका CO2 बना, ठीक है, तो यहाँ पे ये CO2 बना, यहाँ पे ये कार्बन है और ये क्या आपका दो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन दो है। ये बताओ इस कार्बन का क्या रेशियो, कार्बन कितने ग्राम होगा, कार्बन 12 ग्राम, तो ये क्या हो गया 12:16। एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, दो ऑक्सीजन क्या हो 32, सो इसका रेशियो क्या है 12:32। अब यहाँ पे आप इसका रेशियो देख लो CO2 का, यहाँ भी इसका रेशियो क्या है, कार्बन है और क्या आपका ऑक्सीजन, एक का क्या आपका रेशियो 12 और ये क्या आपका 32। तो रेशियो कंपोनेंट बाय वेट, वेट क्या है ये आपका, रेशियो कंपोनेंट बाय वेट क्या रिमेन्स सेम है ना, और इससे कोई डिपेंड नहीं करता क्या सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, आप एग्जांपल देखो और एग्जांपल से समझो, उसके बाद
आप खुद इसको एनालाइज करके बता सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखना क्या करना, कोई भी और एग्जांपल आप ले सकते हैं जिससे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड था। फर्स्ट क्या पढ़ा था मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सेकंड क्या पढ़ा, लॉ ऑफ मल्टीपल, थर्ड हमने क्या पढ़ लिया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, सो नेक्स्ट मेरा जो आपका यहाँ पे पढ़ना है, नेक्स्ट वन जो है आपका वो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट वन इज फोर्थ वन, दैट वन इज गेलु-साक्स लॉ। ओके, इसे क्या कहते हैं, गे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ गेलु-साक लॉ, गेलु-साक्स लॉ और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसे बोल सकते हैं, और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका दो चीज बताता है, एक क्या आपका गेलु-साक्स लॉ है, दूसरा और ये क्या आपका लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको डिफिनेशन से यहाँ नेम से ही पता चल रहा होगा कि किसने दिया है, गेलु-साक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया। ओके, सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सो आपको इससे समझ में आ रहा है ये कुछ वॉल्यूम टर्म से रिलेट कर रहा है, शायद आप स्टेटमेंट से ही पता चलेगा ये कुछ गेलु-साक्स मतलब ये वॉल्यूम से रिलेट कर रहा है, वो भी वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, शायद गैस में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वॉल्यूम टर्म से रिलेट करके क्या क्या बता रहा है, गैसेस के बारे में आप स्टेटमेंट से बता सकते हो, ठीक है। अब ये पता चल गया किसने दिया था, गेलु-साक्स ने दिया था। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट ये कह रहा है, when gases, okay, so we write in the statement that when gases, okay, so when gases combine, okay, combine, all are produced in a chemical reaction, 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 okay, so chemical reaction, okay, so they are in simple ratio, so we write here they are in simple ratio, by volume, they are in simple ratio by volume, okay, so they are in simple ratio by volume, provided all gases are in equal, okay, provided all are in gaseous state, so provided all are in gaseous, okay, provided all are in gaseous, ओके, सो ये देखो क्या कहता है, व्हेन गैसेस कंबाइन, ठीक है, जब गैस कंबाइन होगा तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, ओके, सो गैसेस कंबाइन दैट विल प्रोड्यूस ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड, ओके, सो जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, तो वो जो रिएक्शन होगा वो पूरे क्या होगा, सिंपल रेशियो किसका होगा, बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड, याद रखना, ऑल आर इन गैसेस, सभी किस में होनी चाहिए, गैसेस में। तो माय डियर स्टूडेंट, आप एक ऐसा रिएक्शन बताओ, केमिकल रिएक्शन जिसमें सभी गैसेस स्टेट में है, कोई भी सॉलिड और लिक्विड नहीं होनी चाहिए, सभी किस में होनी चाहिए, आपका गैसियस स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आप सोचो, 2 मिनट समय दे रहा हूं, अगर सोच के बताओ आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो सभी गैसेस स्टेट में होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, सो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है, यहाँ पे क्या होता है आपका हाइड्रोजन गैस, सो दैट वन इज द H2 हाइड्रोजन गैस, ओके, सो हाइड्रोजन क्या आपका गैस है, उसके बाद क्या है क्लोरीन, क्लोरीन क्या आपका Cl2, हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्लोरीन मींस Cl नहीं लेता है, हमेशा 2 ही होता है, 2 ही मिलके पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन भी गैस है आपका, ठीक है, क्लोरीन भी आपका क्या है, गैस है। जब ये हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन भी क्या आपका गैस है, जब दोनों मिला तो इससे क्या बना आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शायद आपने 9th 10th 11th में पढ़ के आ चुके हो,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी क्या है आपका गैस ही है। देखो सबसे पहले तो कंडीशन चेक करनी है इस कंडीशन को लगाने से पहले कि सभी गैस में होनी चाहिए है या नहीं है। देखो हाइड्रोजन भी गैस में है, क्लोरीन भी गैस में है, हाइड्रोक्लोरिक भी गैस में, चलो ये तो सही है। अब क्या कहता है सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। देखो उसके बाद सेकेंड टास्क आपको ये कंप्लीट करना है, इसको एक के क्या करना है बैलेंस करना है। देखो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना है 1 है, इधर क्लोरीन क्या है आपका 2 है, इधर क्लोरीन कितना है आपका 1 है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप 2 लगा दोगे। क्या लगा दिया आपने यहाँ पे 2। तो देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन ये पूरी क्या हो गई आपकी बैलेंस हो गई। अब जब इक्वेशन बैलेंस हो गई तो उसको क्या लिखना है सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो उसे हम लोग लिखेंगे सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। दैट इज यहाँ देखो कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट मतलब H2 है, H2 के आगे कुछ भी नहीं होगा माय डियर, तो उसका मीन्स वहां कॉफिशिएंट कितना है 1। कहीं कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो ये 1 जो है 1, एक मिनट समझ लो 1 जो होता है कहीं भी रिएक्शन के आगे जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं, सुन लेना, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। क्या बोलते हैं इसे हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। सो यहाँ पे इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है 1। क्लोरीन के आगे स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है देखो देखो 1। तो यहाँ पे कितना है इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1। सो यहाँ बताओ आप यहाँ पे कितना है इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2। तो यहाँ पे इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना हो गया 2। अब इसको हम लोग नीचे लिख दो, तो 1 जो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वही क्या देगा आपका वॉल्यूम। सो 1 यहाँ ये भी क्या आपका 1 वॉल्यूम। सो यहाँ ये 2 इसका ये क्या देगा 2 वॉल्यूम। तो ये एक 6 का आपका ये तीनों क्या है सिंपल रेशियो में है। उस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे 1:1:2 बाय वॉल्यूम। ओके, तो ये क्या है आपका एक सिंपल रेशियो में, ये क्या गया आपका एक 1:1:2 एक क्या गया सिंपल रेशियो। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या करना है एक और एग्जांपल सोच के आना जिसमें केवल क्या है आपका गैसेस हो। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने बताया, एक एग्जांपल आपको सोचना है। ठीक है, और जो भी पढ़ाया उसको एक बार रिवीजन करो। ठीक है, अब देखो एक बार मैं इससे बता देता हूँ फिर से। क्या है गैलुसाक्स लॉ, क्या है गैसेस से डिनोट करता है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। इसमें क्या होता है सब भी जब गैसेस कंबाइन करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में होगे, सो वो केमिकल रिएक्शन ही होगी, तो वो जो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड सभी क्या होनी चाहिए गैसेस में। यहाँ देखो ये भी गैसेस में, ये भी गैसेस में, ये भी गैसेस में। इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है 1, इसका कितना है 1, इसका कितना है 2। तो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब भी कोई रिएक्शन के पहले जो होता है वही इसका क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आगे हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, इसी पे बहुत सारे एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन दे रखा है जो आप एज इट इज 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से क्लियर है तो। अगर ये सब क्लियर है तो आगे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आज जो भी कुछ हम पढ़े एक बार ऑल ओवर थ्रू कर ले। देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया था। ठीक है, देखो सबसे पहले केमिस्ट्री में हम लोग बात किए थे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। 2 मिनट क्विक रिवीजन। ओके, तो 2 मिनट में हम पूरे रिवीजन करेंगे जो भी आज तक क्लास में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसमें क्या पढ़ा मास जो नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो ये केवल क्या होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कार्बन प्लस O2 क्या हो गया CO2। इसमें क्या है जो मास रिएक्टेंट को होगा वही मास उधर क्या होगा उतना ही क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, तभी तो कंजर्व होगा, है ना। कंजर्व मीन्स टोटली कंजर्व, कोई एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने मास देखा 12 ग्राम, इसका 32, दोनों का ऐड किया क्या है 44, इधर भी क्या है 44। इसमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वैलिड करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जाम्पल दे रखेगा, बोलेगा इसमें से कौन सा लॉ को वैलिड कर रहा है। ठीक है, तो आप वहां से एनालाइज कर लेना। ठीक है, स्टेटमेंट देख लिया आपने। सेकेंड हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या बताया आपको, ये किसने दिया था डाल्टन ने दिया था। इसमें क्या बताया जब भी 2 एलिमेंट कंबाइन करता है, देखो
दो एलिमेंट कंबाइन किया, सेम एलिमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आप ले लो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन दूसरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होनी चाहिए, हमेशा दो सेम एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो उससे मोर देन वन कंपाउंड बनेगा। एक हाइड्रोजन वाटर बन गया जहां हम लिख सकते हैं वाटर, और दूसरा क्या बन गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और देखो उसमें क्या है, जब हम इसका मास लिखे तो एक का मास क्या है आपका फिक्स्ड है, और दूसरे के मास क्या है आपका एक सिंपल रेशियो में है, और वो रेशियो क्या है 1:2 बाई मास, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। थर्ड वन क्या है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। इसने क्या बोला था, रेशियो कंपोनेंट बाई बेट रिमेन सेम, बेट रेशियो कंपोनेंट्स का हमेशा सेम रहेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा क्या सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सपोज करो यहाँ पे क्या है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, उससे क्या बना CO2, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हीट किया, इससे भी क्या बना आपका CO2। देखो दोनों से CO2 बन रहा है लेकिन मेथड अलग अलग है, एक मैंने कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया था CO2 बना, एक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था क्या बना CO2, है ना। बट जो बन रहा है वो क्या है सेम है, बट उसका सिंपल रेशियो यहाँ क्या कह रहा है, उसका रेशियो बाय वेट रिमेन सेम, ओके। सो इसका रेशियो बाय वेट क्या है आपका रिमेन्स सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। थर्ड फोर्थ आपकी आती है गैलुसाक्स लॉ, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये क्या कहता है, जब भी गैसेस कंबाइन करता है तो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एक केमिकल रिएक्शन जो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होता है, प्रोवाइडेड ऑल आर इन गैसियस, ओके। सो सभी किस में होनी चाहिए, गैसेस में होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे, और ये जो बाहर होता है रिएक्शन से पहले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइकोमेट्री। तो यहाँ स्टोइकोमेट्री 1 तो 1 क्या देगा वॉल्यूम, पहले बैलेंस कर लेना है उसके बाद उसका स्टोइकोमेट्री देखना है, ठीक है। अगर बैलेंस करने के बाद यहाँ 3 आता तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ 3 वॉल्यूम, ठीक है। 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम, सो 1:2 सिंपल रेशियो, ठीक है। सो जो भी पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।